Hello everyone. Let me start with a very simple question. Can Parliament amend the Constitution? If yes, can you tell me the article? Yeah, you are right. Article 368 gives the power to Parliament to amend the Constitution. But if I ask, can the Parliament amend the Constitution in such a way that it can remove the process of elections? It can dismiss or dissolve the Supreme Court and High Court. These are few very extreme things. If the Parliament has the power to amend the Constitution, does it have these power as well? So if the instinctive answer inside your head is no, it sounds unconstitutional, then you have already understood the core idea behind the today's topic, basic structure doctrine. And this doctrine is nowhere mentioned in the Constitution, but it has been developed by various judgment that we will read in the subsequent part by the Honorable Supreme Court, and we will see how it is still evolving. Let us see what we will study in today's class. We'll see what is basic structural doctrine, the evolution of basic structural doctrine, what forms the basic structural doctrine, the significance of basic structural doctrine. There are certain criticism associated with it. We'll see what are those criticisms, and then we'll move to way forward, how this can be improved. And at last, we'll discuss a question from mains 2019, and we'll see if we can answer that question based on the content that we have studied today. So let's move forward. We have discussed that Article 368 provides power to the Parliament to amend the Constitution, and we have also seen that power is not unlimited power. There are certain limitations, certain checks and balances that come into play. So basic structure doctrine can be said as one of the checks and balances that is put on the amending power of the Constitution by the Parliament. So let's see. So it's a judicial innovation to ensure that the power of amendment is not misused by the Parliament. So there, इसके बारे में we'll study in the later part, where the Supreme Court must have felt that the Parliament is misusing its power under Article 368. सो द नेम वॉज गिवन इन केशवानंदा भारती केस. इससे पहले भी काफ़ी सारी जजमेंट है, इसके बाद भी काफ़ी सारी जजमेंट है, जिसको कल्मिनेट कर करके देयर इज़ अ डॉक्ट्राइन जिसमें हम चीज़ें ऐड करते रहते हैं. विल सी क्या क्या ऐड करते रहते हैं गोइंग फॉरवर्ड. सो जो उसका कोर एसेंस यही है कि पार्लियामेंट में रिवाइज प्रोसीजरल एंड सब्सिडरी प्रोविजन बट कैन नॉट ऑल्टर द फाउंडेशन टेनेंट्स, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशनल टेनेंट्स है. वी कैन से सेक्युलरिज्म है, सेपरेशन ऑफ पावर है, देर आर रिट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. देर आर न्यूमरस थिंग्स. देखेंगे हम आगे जाके कि व्हाट आर दोज थिंग्स. सो दिस डॉक्ट्राइन इज इवॉल्विंग. जैसे जैसे देर आर केस टू केस बेसिस पे कुछ इंस्टेंसेज होते रहते हैं. दिस डॉक्ट्राइन कीप ऑन डेवलपिंग. जैसे इस वाले केस में अंजुम कादरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एससी क्लैरिफाइज दैट डॉक्ट्राइन अप्लाइज एक्सक्लूसिवली टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड नॉट ऑर्डिनरी लॉ. विल सी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ में देर इज अ डिफरेंस. आर्टिकल 13 के बारे में हम देखेंगे कि आर्टिकल 13 क्या कहता है. गोइंग फॉरवर्ड विल सी. सो अब हम ना क्रोनोलॉजी देखते हैं, और उससे पहले विल सी कि द ब्रिटिशर्स थे, देयर वर 3 प्रोमिनेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम. कैन यू टेल कौन कौन से थे और क्या क्या, मतलब कौन कौन से रीजन में थे. यस, एक था परमानेंट सेटलमेंट. ये कहाँ पे था? वेस्ट बंगाल में. एंड देयर वाज रॉयतवाड़ी सिस्टम. ये कहाँ पे था? ये मद्रास एंड बॉम्बे वाले रीजन में था. एंड देन महलवारी सिस्टम. ये कहाँ पे था? ये आपका पंजाब वाले रीजन में था. सो लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे, एंड दे वर वेरी ऑपरेसिव. परमानेंट सेटलमेंट सबसे ज़्यादा ऑपरेसिव था, लेकिन तीनों ही ऑपरेसिव थे. सो द फर्स्ट थिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट थॉट कि हमें लैंड रेवेन्यू जो सिस्टम है इसको चेंज करके विल नीड टू ब्रिंग लैंड रिफॉर्म्स, ताकि सबको बराबर बराबर का लैंड मिले, और जो भी ज़मींदारी सिस्टम डेवलप हो गया था ऑपरेशन वाला, दैट कैन बी डन विद. सो उसके लिए गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम लेके आई डिफरेंट डिफरेंट जगह पे. एंड यू ऑल्सो नो कि अभी तो इट हैव राइट टू प्रॉपर्टी हैव बीन मूव टू विच आर्टिकल, या 300A बाय विच अमेंडमेंट. यस, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. बट उससे पहले इट वॉज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट. ठीक है. तो अब द इशू वॉज कि लैंड रेवेन्यू जो रिफॉर्म्स थी, दे वर इम्पैक्टिंग द फंडामेंटल राइट. So there is Article 13 in the Constitution that says the state cannot or shall not make any law which takes away or abridges the right confirmed by this part. So this part that was fundamental right, part 3rd of the Constitution. उसमें right to property was a part of it. So to overcome this issue, the government brought the First Amendment Act, by which they added 31A, 31B to protect the land reforms, and they created a 9th schedule. ये prelims में भी पूछा गया है कि during whose tenure, I mean PM, 9th schedule was added to the Constitution. तो इसमें you can tell 1951 जवाहरलाल नेहरू जी थे उस टाइम पे. और 9th शेड्यूल ऐड किस लिए किया था? ताकि लॉज कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू एंड ओवरकम दिस इशू ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी दैट वाज हिंडरिंग द लैंड रिफॉर्म्स. सो मिस्टर शंकरी प्रसाद, हु वाज जमींदार फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मूव टू द सुप्रीम कोर्ट against this first constitutional amendment. So can you tell me the article under which a person can move to the court, directly to the Supreme Court, if his or her fundamental rights are being violated? That's Article 32. Let's. So yeah, coming back, Mr. Shankari Prasad moved to the court. क्यों? क्योंकि he was saying जो law mentioned in the Article 13 है on the question that कि law equals to constitutional amendment है या नहीं है,
क्योंकि अगर लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है सो हाउ कैन दे जस्ट अमेंड द फंडामेंटल राइट. सो यही क्वेश्चन कोर्ट के सामने था और इन दिस द कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट सब्सटेंटिव लिमिटेशन. मतलब दे सेड कि लॉ इन आर्टिकल 13 डज नॉट मीन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. सो देयर इज अनलिमिटेड पावर of amendment with parliament. Similar judgment came in the Sajjan Singh case, where the court again reiterated that Article 368 confirmed plenty power in the parliament, emphasizing that the constitution could be altered at the will, even extended to modify the fundamental right. But then came the गोलकनाथ केस. अभी तक हमने जो दोनों केस पढ़े थे इसमें हमने क्या देखा कि लॉ इन आर्टिकल 13 वो है डज नॉट मीन इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और लॉ इन आर्टिकल 13 दे आर नॉट इक्वल. सो पार्लियामेंट हैज अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. बट इसमें क्या हुआ कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि लॉ इज इक्वल्स टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. तो उससे अब हुआ क्या कि दे हैव लिमिटेड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो विल सी कि फंडामेंटल राइट्स शील्डेड फ्रॉम अमेंडमेंट. सो इन अदर वर्ड यू कैन ऑल्सो से कि आर्टिकल 13 जो है इज मोर पावरफुल देन आर्टिकल 368. दिस कैन ऑल्सो बी. सो अब गोलकनाथ जजमेंट में उन्होंने बिल्कुल ही रिवर्स कर दिया जो भी अभी तक चीज़ें चली आ रही थी. दे जस्ट रिवर्स्ड इट कम्प्लीटली. और कैन यू टेल मी कि व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ गोलकनाथ बेंच? Yes, it was 11. And Keshwananda Bharti case, largest 13. ठीक है. Can anybody tell me the article जिसमें ये प्रोविजन है कि if the previous decision have to be overturned, so एक लार्जर बेंच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की. क्योंकि अब गोलकनाथ को ओवरटर्न किया केशवानंदा में तो यहाँ पे 11 जज की बेंच थी, यहाँ पे 13 की थी. तो यस आर्टिकल 143 सॉरी आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3. या मूविंग ऑन. अब देयर वाज अ थग ऑफ वॉर गोइंग ऑन. तो 2 अमेंडमेंट्स वर ब्रॉट इन 24th एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. सो इनसे ना एक और बैटल स्टार्ट हो गई बिटवीन डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट. कैसे? आई शो यू. सो 25th में क्या था कि आर्टिकल 31C ऐड हुआ जिसमें इट वाज सेइंग कि 39B और 39C इज मोर इम्पॉर्टेंट और पावरफुल देन आर्टिकल 14 एंड 19. सो ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे था. सो अमेंडमेंट से ये और एक कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो गया बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट. इट वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज लॉ और नॉट, एंड देन इट वाज वाया 24th एंड 25th की डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट हु इज मोर इंपॉर्टेंट. क्योंकि गवर्नमेंट वांटेड टू इंप्लीमेंट सोशलिस्ट प्रिंसिपल और उसके आड़े हाथ ये वाले आर्टिकल आ रहे थे. आर्टिकल 14 कैन एनीबॉडी टेल मी? एंड आर्टिकल 19 इट्स वेरी फेमस, सबको पता होता है. ठीक है. सो आफ्टर दिस केशवानंदा भाटी केस आया जिसमें इट्स अ बर्थ ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर ये बताया कि वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर जिसको पार्लियामेंट टच नहीं कर सकती. उसके अलावा दे कैन अमेंड एनीथिंग. सो यू कैन से इट्स अ बुद्धिज्म में जैसे हम पढ़ते हैं माध्यमिक पाथ होता है ना कि बीच का रास्ता चुन लिया. तो पार्लियामेंट को भी उन्होंने पूरी पावर दे दी और एक लिमिटेशन भी रख दी कि सच दैट कोर प्रिंसिपल्स आर नॉट डिस्टॉर्टेड. कोर प्रिंसिपल्स इंटैक्ट रहे सच दैट देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे, ये इंटैक्ट रहे. ठीक है. इसके बाद केशवानंदा भारती केस के बाद देयर वाज वन मोर इंपॉर्टेंट इवेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसको क्या कहते हैं और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इसने इतने सारे आर्टिकल्स चेंज किए थे एंड इतने सारे सेक्शंस को इम्पैक्ट किया था फ्रॉम फंडामेंटल राइट टू डीपीएसपी टू आर्टिकल 368. एंड इसने बाय एडिंग दीज 2 प्रोविजंस इसने अनलिमिटेड पावर दे दी थी पार्लियामेंट को टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. पहले 25th से क्या हुआ था कि 39B एंड 39C इज़ स्ट्रॉन्गर और इम्पॉर्टेंट. मतलब अगर हमें ये दोनों इम्प्लीमेंट करने हैं और अगर ये दोनों हिंडर हो रहे हैं तो वी विल गिव प्राइमेसी टू दिस. लेकिन 42nd अमेंडमेंट से क्या हुआ कि ऑल DPSPs कैन बी इम्प्लीमेंटेड एंड दे आर इम्पॉर्टेंट एंड दे विल बी गिवन प्राइमेसी ओवर ऑल फंडामेंटल राइट्स. सो एक स्टेप हमेशा ना ऊपर बढ़ता जा रहा था. एवरी टाइम पार्लियामेंट वॉज डूइंग समथिंग एंड देन सुप्रीम कोर्ट वॉज पासिंग सम जजमेंट. तो तभी एक सब्सिक्वेंट इसको चैलेंज किया गया मिनर्वा मिल्स केस. इसमें क्या हुआ कि अब आई टोल्ड यू कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है इट्स नॉट फिक्स्ड, ये इवॉल्विंग है, डेवलप हो रहा है. तो इसमें जुडिशियल रिव्यू को ऐड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और ये वाले आर्टिकल्स को स्ट्रक डाउन कर लिए थे. देन दे एडेड जुडिशियल रिव्यू एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. विल सी गोइंग फॉरवर्ड की बेसिक स्ट्रक्चर की काफ़ी बड़ी लिस्ट है. उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं थ्रू डिफरेंट जजमेंट, वो भी देखेंगे. बट मिनर्वा मिल्स से जुडिशियल रिव्यू पहली बार ऐड हुआ. तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि जुडिशरी के पास पावर है दैट इट कैन रिव्यू द लॉ पास बाय द पार्लियामेंट. ठीक है.
तो अब इसमें देखेंगे प्रिंसिपल दैट आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. सो आई टोल्ड यू इट्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट. सो लेट्स गो थ्रू स्किम थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जल्दी जल्दी देख लेते हैं. जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, केशवानंद भारती केस. सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक जजमेंट और दूसरी जजमेंट मतलब द सुप्रीम कोर्ट रीट्रेटेड द सेम थिंग इन दिस जजमेंट. रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी सेक्युलरिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एसआर बोमई केस. फिर फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती केस. सेपरेशन ऑफ पावर, केशवानंद भारती केस सेम. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट केसेस जो भी लिखे हुए ना. सेकंड जज, थर्ड जज, इसमें क्या हुआ था, कोलिजियम स्टडी की. कोलिजियम सिस्टम क्या होता है, कोलिजियम सिस्टम डेवलप हुआ था इन केसेस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस. तो इसने बोला था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. देन फंडामेंटल राइट, ठीक है, हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल. आई टोल्ड यू ना देयर वाज डीपीएसपी वर्सेस एफआर का कॉन्टेस्ट भी स्टार्ट हो गया था. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हार्मोनियस कंस्ट्रक्ट करके एक डॉक्ट्राइन भी दी थी. यू कैन रीड अबाउट इट और यू कैन टेल मी क्या होती है वो. रूल ऑफ लॉ, इंदिरा गांधी केस, ठीक है. ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें. पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मिनर्वा मिल्स में भी, इसमें भी बोला था. इंदिरा गांधी एंड राजनारायण केस में बोला था. रिट जुरिडिक्शन ऑफ एससी एंड एचसी, एल चंद्र कुमार केस, ये ट्राइब्यूनल से रिलेटेड है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. गो थ्रू दिस लिस्ट. ज़्यादा बड़ी नहीं है बट इंपॉर्टेंट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी. ठीक है, अब विल सी की सिग्निफिकेंस क्या होगी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की. देखो, इसको ना करने का बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है. या तो हम इसको अब डायरेक्टली रीड कर लें, बट उससे बेटर ये है कि हम पॉइंट्स इसको बनाए कैसे. अगर हम एग्जाम में लिखने के लिए आ गया, सो हमें पॉइंट्स बनाने आने चाहिए ना. सो कैसे बनाएंगे हम इनके पॉइंट्स, कि हम एक स्टेक होल्डर्स अप्रोच देख लेते हैं कि अब एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, इसका इंपैक्ट किस किस चीज़ पे पड़ रहा होगा, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होंगे. कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, जुडिशरी होगी, पार्लियामेंट होगा, पीपल, लोग होंगे. देर आर न्यूमरस थिंग्स, ठीक है. ये इसके स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं. तो हम इसी के अराउंड अगर पॉइंट्स बनाए ना तो काफ़ी सारे डेवलप हो जाएंगे. जैसे हम देख लेते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी, एक्ट एज अ गार्जियन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स एंड इंश्योर दैट ट्रांजिएंट पॉलिटिकल मेजॉरिटीज कैन नॉट अफेक्ट द फाउंडेशनल ईथोस. ठीक है, मतलब उसका सेम ही कि उसकी आइडेंटिटी इंश्योर करेगा. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रोबस्ट चेक ऑन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी. सो पार्लियामेंट जो है, अब मान लो गवर्नमेंट चेंज हुई, डिफरेंट आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट आई, तो दे कैन चेंज द कंप्लीट सिस्टम अगर उनके पास अनलिमिटेड पावर होगी. तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है इंश्योर करता है कि देयर इज़ नो ओवर आर्क पार्लियामेंट की साइड से. तो एक तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस इंश्योर करता है कि देयर आर चेक्स एंड बैलेंसेस. ठीक है, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे करता है, क्योंकि पीपल नो दैट देयर इज स्टेबिलिटी एंड देयर इज कंसिस्टेंसी इन द सिस्टम. लोगों को पता है ना कि देयर इज स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंट सिस्टम है, क्योंकि कोर वैल्यूज सेम है. तो एक बेसिक फ्रेमवर्क तो सेम ही रहेगा ना. सो दे विल हैव मोर ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट. अपहोल्ड रूल ऑफ लॉ. ऑल गवर्नमेंट एक्शन मस्ट कन्फर्म टू द इम्यूटेबल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड. वही जुडिशियल रिव्यू. सो गवर्नमेंट डिसीजन लेने से पहले सोचेगी कि दैट देयर इज जुडिशियल रिव्यू, तो हम कुछ गलत काम ना करें. और एलिवेटिंग लेजिस्लेटिव डेलिब्रेशंस. तो इसमें भी क्या होगा कि व्हेन पार्लियामेंट इज मेकिंग लॉ ना, दे कीप इन माइंड कि हम कुछ ऐसी चीज़ ना करें जो कि आगे जाके स्टक डाउन हो जाए. पार्लियामेंट कैन अगेन मेक अ लॉ, लेकिन एक बार स्टक डाउन हो जाएगा तो इट विल गेट कम इन लाइमलाइट. तो टू इंश्योर दैट कि ऐसा ना हो, तो डेलिब्रेशन जो होंगी पार्लियामेंट में, दैट विल टेक प्लेस सच दैट दे डू नॉट इम्पैक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो अब इससे रिलेटेड क्रिटिसिज्म्स भी हैं कुछ. क्या सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है कि ये दिस इज ब्रॉट इन बाय जजेस हु आर अनइलेक्टेड. सो वो एक ऐसा सिस्टम लेके आ गए एंड दे आर अनइलेक्टेड, जो हमारी कंट्री का स्ट्रक्चर है और हमारी कंट्री के की जो लॉज है उनको इतना हैवीली इम्पैक्ट कर रहा है. ठीक है, तो इसमें भी वी कैन सी स्टेक होल्डर अप्रोच से हम देख सकते हैं कि किस किस पे फर्क पड़ेगा. सेम ही वाला 4-5 चीज़ें इनके अराउंड ही वी कैन बिल्ड द पॉइंट. तो देख सकते हो कंसेप्चुअली वेग है. क्यों? क्योंकि कहीं पे मेंशन तो है नहीं. जजमेंट से ये डेवलप हो रहा है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है ना, कहीं पे कोडिफाइड है. बस ये बहुत सारी जजमेंट्स हैं, उससे एक जगह पे पीपल नो कि ठीक है, यहाँ जजमेंट, इस जजमेंट में ये था, इस जजमेंट में ये था. इट्स जस्ट लाइक प्रिविलेजेस. जैसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर नॉट कोडिफाइड ना, सो सेम ये भी एक कोडिफाइड चीज़ नहीं है और कंसेप्चुअली वेग है. केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है. So doctrine lacks a precise universal acceptance test, lead to divergent judicial interpretations and occasional unpredictability. ठीक है, potential judicial overarch and sometimes judicial activism to judicial overarch. क्योंकि जुडिशरी का काम लॉ बनाना तो नहीं था, बट दिस इज इनडायरेक्टली इम्पैक्टिंग द लॉ दैट आर बीइंग मेड इन द कंट्री. तो क्वासी लेजिस्लेटिव पावर एक तरीके से जजेस के पास आ गई. सो पॉलिसी मैटर को इम्पैक्ट करती है पार्लियामेंट की. ठीक है, टेंशन बिटवीन सेपरेशन ऑफ पावर लॉस. क्योंकि हमें पता है ना आर्टिकल 122 व्हाट डज इट से कि जो भी पार्लियामेंट के मैटर होंगे उसमें जजेस विल नॉट इंटरवीन. बट ये तो डायरेक्टली इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. इट सेल्फ इन्फ्रिंजेस ऑन द वेरी प्रिंसिपल सीक्स टू प्रोटेक्ट, क्रिएटिंग अ पैराडॉक्सिकल सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन. सेम चीज़ इसमें भी है. क्यों? क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. एंड अब यहाँ पे वी सी की सेपरेशन ऑफ पावर तो हुआ नहीं, क्योंकि जुडिशरी इज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेकिंग लॉज, जो कि लेजिस्लेचर का काम होना चाहिए था. सो दैट्स द पॉइंट. परसीव आर्बिट्रेंस इन एप्लीकेशन, क्योंकि केस बाय केस बेसिस पे इट इज़
इम्प्लीमेंटेड, कोई एक फिक्स प्रिंसिपल तो है नहीं, नया केस आता है, समथिंग न्यू इज एडेड, तो इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग.